everyone. In the previous class, we have learnt about buffer solution. There are two types, acidic and basic buffer, and also Henderson-Hasselbalch equation. Now, in this class, we will learn what is buffer action. मतलब buffer के अंदर ऐसा क्या होता है जिसके वजह से उसका pH change नहीं होता. So, to learn this, let us take one example of acidic buffer. So, I am taking the example of mixture of acetic acid and sodium acetate. Now, acidic buffer के अंदर क्या होता है? Acidic buffer is a mixture of weak acid. So, acetic acid है weak acid and इसी का salt of strong base, इसी acid का salt of strong base. अगर ये दोनों को मिक्स कर दिया तो हमें मिलता है acidic buffer. So here we have taken the example of acetic acid and sodium acetate. Now out of the two, CH3COOH is weak acid, or we can say weak electrolytes, and weak electrolytes do not dissociate completely. So if I write down the reaction for acetic acid, CH3COOH aqueous is reversible with CH3COO minus aqueous plus H plus. अभी we are showing this with reversible arrow क्योंकि ये weak electrolyte है, मतलब ये completely dissociate नहीं होता, पूरा dissociate नहीं होता. इसका मतलब है ये जो dissociated ions है, मतलब कौन, CH3COO minus and H plus, they are dissociated ions. ये अपने मिक्सचर में एकदम कम हो गए और ज़्यादा कौन होगा, CH3COOH, बिकॉज ये वीक एसिड है, वो पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा है. ज़्यादातर ऐसा ही रहता है, ज़्यादातर वो डिसोसिएट नहीं होता, ज़्यादातर ऐसा का ऐसा ही रहता है. सो वी हैव मोर ऑफ CH3COOH बट वी हैव लेस ऑफ दीज डिसोसिएटेड आयंस, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट it remains, most of the acid remains undissociated. ज़्यादा वो undissociated ही रहेगा और एकदम कम dissociate होगा, being a weak electrolyte. Now दूसरा अपने पास क्या है, CH3COONA, that is sodium acetate, which is a strong electrolyte क्योंकि ये salt of strong base है, तो ये है strong electrolyte. तो अगर हम इसका रिएक्शन लिखते हैं तो हम इरिवर्सिबल सिंगल हेडेड एरो लिखाएंगे. क्यों? बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा. वो जितना सोडियम एसीटेट है वो पूरा का पूरा डिसोसिएट होके उससे हमें डिसोसिएटेड आयंस मिलेंगे, विच आर CH3COO minus मतलब acetate ions and Na plus aqueous. So basically ये समझो कि acetic acid पूरा dissociate नहीं होगा, but sodium acetate being a strong electrolyte will dissociate completely. Then अभी हमने buffer solution का definition क्या किया था? We have defined our buffer solution as a solution which resists any change in the pH on addition of small quantity of strong acid और strong base और water. That means ये mixture के अंदर अगर हम small quantity of strong acid या फिर strong base या फिर पानी डालेंगे तो भी ये mixture का pH change नहीं होने वाला है. So therefore we will learn ऐसा क्या होता है वो ऐड करने पर कि इसका pH change नहीं होगा.
So the first, we will go step by step. So the first consideration that we are going to take is we are adding some quantity of acid. So जब भी हम acid add कर रहे हैं, we are actually adding H plus to the solution. So while adding acid, हम लोग add क्या कर रहे हैं? H plus add कर रहे हैं. So when if H plus is added to the solution of बफर, एसिडिक बफर, तो क्या होगा? ये जो H प्लस है वो ये एसीटेट आयंस के साथ रिएक्ट होगा लाइक दिस. दीज एसीटेट आयंस these acetate ions will react with extra H plus that we have added. जो हम बाहर से उसके अंदर H plus ऐड करते हैं उसके साथ वो रिएक्ट हो जाएगा. टू फॉर्म CH3COOH. मतलब जो भी हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, हमने अगर एक्स्ट्रा H प्लस ऐड किया बाहर से तो भी वो रिएक्ट हो रहा है, तो भी वो किसी के साथ रिएक्ट होके अभी H प्लस प्रेजेंट है ही नहीं अपने मिक्सचर में. जो हमने एक्स्ट्रा H प्लस डाला वो रिएक्ट हो गया और अभी वो H प्लस है ही नहीं. तो अगर H प्लस है ही नहीं तो pH कैसे चेंज होगा? बिकॉज जो भी हम एसिड, जो भी हम H प्लस ऐड करते हैं वो रिएक्ट हो जाता है. देन सिमिलरली इफ वी ऐड बेस, सो व्हेन वी आर एडिंग सम बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब हम क्या ऐड कर रहे हैं? वी आर एडिंग OH माइनस टू द सोल्यूशन. सो ये भी जो OH माइनस जो हम एक्स्ट्रा बाहर से ऐड करेंगे वो भी रिएक्ट होगा किसके साथ? एसिटिक एसिड के साथ. This acetic acid will consume this OH minus. कैसे कंज्यूम होगा? एसिटिक एसिड के प्लस ये जो H प्लस है वो H प्लस एंड OH माइनस मिला के वाटर बनेगा एंड बचेगा क्या? CH3COO माइनस. दैट मीन्स जो भी हम एक्सटर्नली ऐड करते हैं, इफ़ वी ऐड H प्लस और इफ़ वी ऐड OH माइनस, दोनों भी अंदर ही अंदर कंज्यूम होते जा रहा है. ओके, देन हाउ डू वी कैलकुलेट pH या फिर POH हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं? pH क्या होता है? निगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस. POH क्या होता है? निगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस. मतलब pH एंड POH डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस. बट जो भी हम बाहर से H प्लस OH माइनस ऐड करते हैं वो रिएक्ट हो रहा है, वो कंज्यूम हो रहा है. मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो ही नहीं रहा है. अगर हम ऐड भी करते हैं वो तो रिएक्ट होके वो ख़त्म हो जाता है. सो देर इज़ नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस. ड्यू टू दिस रीजन देर इज़ नो चेंज इन द pH. देन हम लोग ने थर्ड क्या बोला था? वी हैव सेड दैट अगर उसमें पानी डाल के भी अगर उसको डाइल्यूट करते हैं, पानी डाल के भी अगर उसको डाइल्यूट करेंगे तो भी उसका pH चेंज नहीं होगा. सो ना वो क्यों नहीं होगा? ना सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एसिडिक बफर, लेट अस राइट डाउन हेंडरसन-हेसेलबैच इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर. तो वो क्या था? pH इज इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10 ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड. सो अपने ये वाले एग्जाम्पल में सॉल्ट कौन है? सोडियम एसिटेट सॉल्ट है. एसिड कौन है? एसिटिक एसिड है. सो यू कैन अज्यूम दिस इक्वेशन एज, वो कैसा एक्चुअली होना चाहिए? pH इज इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड. ना जब भी हम पानी डालेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों में से सिर्फ एक ही डाइल्यूट होगा. व्हेन वी आर एडिंग
वाटर टू द बफर सोल्यूशन, ये दोनों के भी अंदर हम पानी डाल रहे हैं. सो इफ वी आर एडिंग वाटर टू द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों भी डाइल्यूट हो जाएगा. बोथ ऑफ देम विल डाइल्यूट, दोनों का भी कॉन्सेंट्रेशन साथ में चेंज होगा. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है या फिर सिर्फ एसिड का चेंज हो रहा है, दोनों का साथ में इक्वली चेंज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है. डाइल्यूट हो रहा है मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है. सो अगर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होता है तो एसिड का भी कॉन्सेंट्रेशन कम होगा. सो दोनों भी कम हो गया तो क्या होगा, दोनों का रेशियो मेंटेन रहेगा. ओके, दोनों भी इक्वल और दोनों भी इक्वली डाइल्यूट हो रहे हैं तो दोनों का रेशियो मेंटेन रहेगा. सो दिस पार्ट सॉल्ट अपॉन एसिड, ये जो रेशियो है, दिस रेशियो विल रिमेन अनचेंज्ड. उसका इंडिविजुअल वैल्यू अगर चेंज हो भी जाता है तो भी दोनों का रेशियो उतना ही रहेगा. ओके, इट्स लाइक अगर पहले अगर ऐसा कुछ रेशियो है 2/4, अगर पहले ऐसा नंबर था 2/4 तो वो बाद में बनेगा 1/2. तो दोनों का रेशियो तो इक्वल ही है. ओके, ये 2 का 1 हो गया, 4 का 2 हो गया, बट रेशियो तो उतना ही होगा. 2/4 उसी का मतलब होता है 1/2. सो सेम थिंग इज अप्लाइड ओवर हियर. दोनों भी एक साथ कम हो गए इसीलिए वो रेशियो भी सेम रहेगा. और अगर ये रेशियो सेम रहेगा तो पीएच भी सेम रहेगा, बिकॉज दिस पीएच डिपेंड्स अपॉन देयर रेशियो. ओके, सो अगर ये सेम रहेगा तो उसका pH भी सेम रहेगा. सो दिस इज हाउ, और वी कैन ऑल्सो लर्न दीज 3 पैरामीटर्स एज प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सोल्यूशन. मतलब क्या, बफर सोल्यूशन का प्रॉपर्टीज क्या होता है. पहला, अगर उसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो उसका pH चेंज नहीं होगा. दूसरा, स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे तो भी pH चेंज नहीं होगा. एंड थर्ड इज, अगर उसके अंदर वाटर ऐड करेंगे तो भी उसका pH चेंज नहीं होगा. Now there is one more property of buffer solution. If buffer solution is kept like this for longer time, उसको ऐसे ही अगर रख देंगे कुछ ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो भी उसका pH चेंज नहीं होता. मतलब ऐसे नहीं कि मैंने बफर सोल्यूशन बना के रख दिया और कुछ दिनों बाद अगर मुझे उसको यूज़ करना है तो भी मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ, बिकॉज उसके अंदर pH का कोई चेंज आया ही नहीं है. सो देयरफॉर इवन इफ इट इज़ kept for the longer time, we can still use that buffer solution because there is no change in the pH even if it is kept for a longer time. Now let us quickly take one example of basic buffer also to understand this concept more. एसिडिक में क्या होगा ये तो हमें पता चल गया, वैसे ही कुछ बेसिक बफर में भी होना चाहिए. सो लेट अस क्विकली टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ बेसिक बफर एंड अंडरस्टैंड दिस इन मच डिटेल. Now, let us take the example of basic buffer as mixture of NH4OH and NH4Cl. Out of these two, NH4OH is a weak base and NH4Cl is its salt of strong acid. NH4OH वीक बेस है और उसी का सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, NH4Cl. सो सिमिलरली जैसे यहाँ पे हुआ था, जो वीक एसिड है वो ज़्यादा डिसोसिएट नहीं हुआ था, ज़्यादातर वो अनडिसोसिएटेड ही था. सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर. दिस वीक बेस NH4OH विल रिमेन अनडिसोसिएटेड, एकदम थोड़ा सा ही उसका डिसोसिएशन होगा. सो दिस इज हाउ वी कैन शो द रिएक्शन. बट इसमें NH4OH ज़्यादा रहेगा, NH4 प्लस एंड OH माइनस बहुत कम होगा, बिकॉज ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है. बट द सेकेंड कंटेंट दैट वी हैव NH4Cl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये तो पूरा डिसोसिएट होगा. So while writing reaction of NH4Cl, we will write NH4Cl aqueous will give us NH4 plus
प्लस Cl माइनस, इसका पार्शियल डिसोसिएशन और इसका कंप्लीट डिसोसिएशन। नाउ अगर हम उसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं, इफ़ वी ऐड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इन दिस बफर सोल्यूशन, ये जो H प्लस है वो रिएक्ट होगा NH4OH के साथ लाइक दिस। NH4OH विल रिएक्ट विथ H प्लस। कैसे होगा? NH4OH के प्लस OH माइनस है, तो वो OH माइनस H प्लस के साथ रिएक्ट होके वाटर बना लेगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या? NH4 प्लस बचेगा। सो NH4 प्लस प्लस H2O। सो यहाँ पे भी सेम है, जो भी हम बाहर से एक्स्ट्रा एसिड, एक्स्ट्रा H प्लस ऐड कर रहे हैं वो कंज्यूम हो रहा है। तो अगर H प्लस कंज्यूम हो रहा है तो pH चेंज होगा ही नहीं, बिकॉज pH डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। बट जो भी हम बाहर से H प्लस ऐड करेंगे, since it is getting consumed in the reaction, there is no change in the concentration of H plus, due to which there is no change in the pH. Now similarly if we add OH minus तो क्या होगा? मतलब if we add small quantity of base तो क्या होगा? ये जो OH minus है वो NH4 plus के साथ react होगा like this. NH4 plus aqueous will react with OH minus aqueous and it will give you NH4OH aqueous. NH4 plus OH minus will give you NH4OH. Now अभी जहाँ जो भी हमने OH माइनस ऐड किया वो भी कंज्यूम हो गया, जो भी बेस ऐड किया वो भी कंज्यूम हो गया। सो देयरफॉर देयर इज़ नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन एंड देयर इज़ नो चेंज इन द pH ऑफ बफर सोल्यूशन। मतलब एक्चुअली कैसा है, यहाँ पे खुला H प्लस है ही नहीं, आई मीन ओनली H प्लस है ही नहीं, H प्लस रिएक्ट्स विथ समथिंग एल्स, सो देयरफॉर इट इज़ कंज्यूम्ड। हियर ऑल्सो OH माइनस, ओनली OH माइनस प्रेजेंट नहीं है एक्वस मीडियम में, वो रिएक्ट होके कोई और कंपाउंड बन रहा है। सो देयरफॉर देयर इज़ नो चेंज इन दी कॉन्सेंट्रेशन। एंड लास्टली हम लोग ने क्या बोला, पानी डालने पर क्या होगा? सो फॉर बेसिक बफर्स ऑल्सो वी हैव लर्नड हैंडरसन-हैसेलबैच इक्वेशन। वो कैसा था? POH is equal to pKb plus log to the base 10 of salt अपॉन बेस। सो ये वाले केस में अपना सॉल्ट कौन है? NH4Cl और बेस कौन है? NH4OH। सो ये इक्वेशन को ऐसे समझो, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4Cl डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH। नाउ सिमिलरली जैसे यहाँ पे एसिडिक बफर में हुआ था, सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन बेसिक बफर। अगर हम उसके अंदर वाटर डाल के उसको डाइल्यूट करते हैं तो दोनों भी साथ में डाइल्यूट होगा, सॉल्ट भी डाइल्यूट होगा और बेस भी डाइल्यूट होगा, दोनों भी एक साथ एक ही एक्सटेंट तक डाइल्यूट होंगे। सो सिंस द डाइल्यूशन, एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन इज सेम इन बोथ द केसेस, इनका रेशियो सेम रहेगा। इंडिविजुअल वैल्यू चेंज होगा, सॉल्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, बेस का भी कम होगा, बट अगर दोनों का रेशियो लेते हैं, ये वाला रेशियो, तो ये वाला रेशियो उतना ही रहेगा। सो सिंस द रेशियो रिमेन्स सेम, POH वैल्यू रिमेन्स सेम, मतलब pH, बिकॉज pH एंड POH दोनों भी इंटर रिलेटेड है। pH प्लस POH कितना होता है? 14 होता है। तो अगर pH उतना ही रहेगा तो अगर POH उतना ही रहेगा तो pH भी उतना ही रहेगा। सो दैट मीन्स इवन इफ यू ऐड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ strong acid or strong base or water, there is going to be no change in the pH. So this is how
the buffer action. This is how is the mechanism of buffer solutions. Thank you so much for watching.